Introduction and overview. Coagulation cascade, heparin, C.V.F.S and LFWH, vitamin K antagonist, direct oral anticoagulants, direct thrombin inhibitors, factor S inhibitors, thrombolytic and fibrinolytic agents, antiplatelet agents, comparison and selection, monitoring reversal, side effects and risks, clinical indications, a special population and summary, and conclusion. First of all, introduction to anticoagulants. Anticoagulants are a class of medications that prevent blood clot formation, means thrombosis. Okay? By interfering with one or more steps of the coagulation cascade. मतलब anticoagulants वो प्रोसेस होता है जिसमें जो वो चीजें होती हैं जिसके थ्रू coagulation का प्रोसेस जो है वो रोका जाता है. तो उसमें जो चीजें होती हैं उस प्रोसेस को जो प्रोसेस होता है क्लॉट फॉर्मेशन का उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं. तो थ्रोम्बोसिस को रोकने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो एंटीकोगुलेंट्स कहलाते हैं. They are used to prevent and treat conditions such as DVT, pulmonary embolism, stroke and atrial fibrillation. तो इन कंडीशंस में इनका यूज होता है. मैकेनिज्म इंटरफेयर विद क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनके साथ इंटरफेयर करते हैं. थ्रोम्बिन और प्लेटलेट एग्रीगेशन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस. ठीक है. इंडिकेशंस में डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एट्रियल फिब्रिलेशन, मैकेनिकल हार्ट वॉल्व्स, पोस्ट सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, इसमें इसका यूज होता है. क्लासिफिकेशन में हेपारिन, लीकेज, यूएसएस, एंटीप्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स. मॉनिटरिंग में आईएनआर फॉर वारफेरिन, एंटी-एक्सरे फॉर और एपीटीटी फॉर हेपारिन्स. डीओएसी नीड्स नो रिपीट मॉनिटरिंग. तो कुछ न कुछ केसेस में मॉनिटरिंग की भी जरूरत होती है. तो इस तरीके से एंटीकोगुलेंट्स कोगुलेशन के प्रोसेस को रोकने में सहायक होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जगह पे जहां पे इसका इंडिकेटर है. तो कोगुलेशन कैस्केड क्या होता है? वेयर एंटीकोगुलेंट एक्ट्स इंट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 12, दिस इज हैगमैन, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 8 प्लस कैल्शियम, फैक्टर 10 एक्टिवेटेड. इन एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर दैट इज कॉल्ड TF, factor 7 plus TF complex, factor 7 activated, factor X activated, then common pathway. And common pathway plus drug tablets में prothrombin to thrombin with the help of heparin, abiraterone, dabigatran, inhibit here. Fibrinogen and fibrin, factor XA activation and vitamin K factors 2, 7, 9 and 10. The factor XA Fibrinogen to fibrin में heparin enhances antithrombin 3. Factor X activation में rivaroxaban, apixaban and edoxaban inhibit XA. Vitamin K factors में warfarin और acetylcholine and block synthesis. तो इस तरीके से तीनों पाथवेज के थ्रू होते हैं. इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे प्लस ड्रग टैबलेट्स. Heparin, unfractional and low molecular weight. Unfractional heparin, that is called C.V.F.S. Its mechanism binds antithrombin 3 to inhibit thrombin 2A and factor XA. Its route is IV infusion or subcutaneous injection. Half-life इसकी होती है 1 hour IV and 2 hours subcutaneous. Monitoring APTT target 60 to 100 seconds or LPXA. Reversal protamine sulfate 1 mg per 100 units. Advantages: short half-life, fully reversible. Limitation: narrow therapeutic window, hit risk, frequent monitoring required. Low molecular weight heparin, that is called LFWH. Mechanism इसकी होती है primarily inhibits factor XA via antithrombin 3, less thrombin inhibition. ठीक है. Route इसका subcutaneous injection only. Half-life 3 to 6 hours, longer या more predictable. Monitoring usually not required. Anti-XA in renal impairment, obesity and pregnancy. Reversal इसका partial protamine almost 60% effective होता है. इसमें भी protamine sulfate है, उसमें भी protamine है. But 1 mg per 100 units और उसमें 60% effective है. Advantage इसमें क्या है? Predictable response, outpatient use, lower hit risk than C.V.F.S. इसमें रिस्क जो है LFWH में C.V.F.S से ज्यादा, मतलब रिस्क इसमें कम होता है. Limitations:
रीनली क्लियर्ड कॉशन इन सीकेडी। अगर सीकेडी पेशेंट है तो उस पर कॉशन के साथ LMWH यूज करना चाहिए। विटामिन के एंटागोनिस्ट मैकेनिज्म एंटी ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ब्लॉक हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक नंबर 2, 7, 9 एंड 10 एज वेल एज प्रोटीन C and S। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका स्लो होता है 2 to 5 days फॉर फुल एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। ठीक है, की ड्रग्स इसमें वारफेरिन यूज होती है और एसिडोक्यूमोरॉल एंड फिनोक्रोक्यूमोल एंड ब्रोडीफैकॉल। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग इसकी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो जो होता है टारगेट रेंज इसकी 2 to 3 होती है फॉर मोस्ट इंडिकेशंस एंड 2.5 to 3.4 फॉर मैकेनिकल वॉल्स। रिवर्सल एजेंट्स इसमें विटामिन के स्लो होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या क्लोरोफॉर्म कॉम्प्लेक्स या कंसंट्रेट PCC एंड फाइटोएडिनोन IV फॉर इमरजेंसी। INR टारगेट्स में एंटर इंटरेक्शंस में AF DBT प्रोफाइलैक्सिस में INR हमेशा 2 से 3 के बीच में, मैकेनिकल हार्ट वॉल्व में INR 2.5 से 3.5, रिकरेंट VTE में INR 2 से 3 के बीच में एंड ब्रीचिंग थेरेपी में पर प्रोटोकॉल जैसा प्रोटोकॉल हो उसके हिसाब से INR को सेट किया जाता है, मतलब उससे तक मेंटेन रखना होता है विटामिन। मेजर ड्रग इंटरेक्शन इंक्रीज आएगा, अगर INR ज्यादा है तो ब्लीडिंग रिस्क होता है। इसके साथ साथ एनएसआईडी और अमाइलोइड फ्लुकोनाजोल मेट्रोनिडोल एस्पिरिन और स्टैटिन्स इसके साथ रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज INR, अगर रिस्क है तो क्लॉट रिस्क इसमें हो जाएगा, क्लॉटिंग हो सकती है, कॉज रिफॉर्मेशन कार्बोमाजेपिन विटामिन के रिच फूड एंड सेंट जॉन्स वार्ड्स, ये सारी चीजें इससे रिस्पॉन्सिबल होगी। डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट्स में दैट इज कॉल्ड डॉक्स ओवरव्यू। Docs also called NOACs direct inhibit specific coagulation factors without involving cofactors. They offer predictable pharmacokinetics, fixed dosing and require no routine INR monitoring. तो इसके साथ अच्छाई क्या है कि और इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो प्रेडिक्टेबल होता है, फिक्स होता है और डोजिंग इसकी फिक्स होती है और रिक्वायर नो रूटीन INR मॉनिटरिंग। इसकी INR की मॉनिटरिंग करने की आपको जरूरत उसमें स्पेसिफिकली नहीं होती है। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में टारगेट फैक्टर 2A थ्रोम्बिन दैट इज द फाइनल कॉमन पाथवे। की ड्रग इसकी dabigatran ethoxylate that is called Pradaxa, that is oral product. Dosing इसकी 150 mg और 110 mg PD. Reversal idrazulzumab that is called Praxipin, specific antidote होता है इसका। Monitoring not routine, thrombin time if needed. Uses AF stroke prevention, VTE treatment and prophylaxis. ठीक है, atrial fibrillation and VTE. नेक्स्ट इज फैक्टर XA इनहिबिटर्स में इसमें ड्रग्स होती है रेमरोक्सामैन, एपिक्सामैन एंड इडोक्सामैन एंड अदर्स। टारगेट इसका फैक्टर ऐसे दैट ब्लॉक्स प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डोजिंग क्या होती है वंस और ट्वाइस डेली। रिवर्सल एडिक्सेनेट अल्फा दैट फॉर राइवा एपिक्सा एंड PCC इज 4 फैक्टर। मॉनिटरिंग नॉट रूटीन एंटी XA ऐसे इफ रिक्वायर्ड and uses इसमें AF, DBT and PBP treatment, post surgical prophylaxis में भी ये यूज होती है। और इसमें कुछ जो लॉन्ग ड्रग कंपैरिजन है हम बात करें तो dabigatran का rivaroxaban, apixaban, edoxaban and apixaban, तो ये इसके स्पेसिफिकली इसके टारगेट, प्रोडक्ट, हाफ लाइफ, डोजिंग, रीनल एक्सप्रेशन एंड एंटीडोट्स मेंशन किए गए हैं। Next is antiplatelet agents. Antiplatelet drugs reduce platelet aggregation are primarily used in arterial thrombosis. Arterial thrombosis में इसको यूज किया जाता है ACS, stroke and PCI. They target different platelet activation pathways. और different pathways को ये activate करते हैं antiplatelet drugs. इसमें एस्पिरिन है, टिकाग्रेलर है और एप्सिक्सिमैब, क्लोपिडोग्रिल, प्रेसिलग्रिल एंड डाइक्लोरमाइन, ये सारी ड्रग्स होती है एंटीप्लेटलेट काम करती है। ठीक है, इनका यूज अगर बता दें तो ये ACS और कैट और इस्चीमिया या स्ट्रोक प्रिवेंशन में एंसास में पोस्ट CABG दैट इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में यूज होता है एंड रिट्रेक्टिनॉल ACS में दैट इज प्रेफर्ड ओवर क्लोपिडोग्रिल इन SDMI और नॉन SDMI एपिडेमाइड। एप्सिक्सिमैब
Copytogular uses acute coronary syndrome, post PCI stent thrombosis PAD and atrial fibrillation. Prasugrel जो होता है वो ACS undergoing या PCI especially DM patient, diabetic patients जो होते हैं डायबिटिस, and dipyridamole जो होता है वो combined with aspirin for stroke and TIA that is called transient ischemic attack prevention के लिए यूज किया जाता है. Thrombolytics and fibrinolytic agents में antiplase, tenecteplase, streptokinase, urokinase and retiplase. तो जो फाइब्रोलिटिक या थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स होते हैं वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में और डिसॉल्व एक्जिस्टिंग फाइब्रिन क्लॉट्स यूज इन एक्यूट इमरजेंसी वेयर इमीडिएट क्लॉट लाइसिस इज रिक्वायर्ड. जब बहुत जल्दी से क्लॉट फॉर्मेशन अगर कोई हुआ है उसको डिसॉल्व करने के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है, उसमें से यही फाइब्रोलिटिक ड्रग्स यूज होती है, जैसे एंटीप्लेस. एंटीप्लेस का जो यूज होता है 9 to 16 आवर्स ऑफ सिम्टम ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक के सिम्टम के 9 से 16 घंटे के अंदर यूज किया जाता है. एंड इट इज यूज इन इंट्राक्रेनियल हेमरेज एंड सर्कुलेटर ब्लीडिंग एक्यूट एडवर्स इफेक्ट होते हैं. इसका यूज होता है एसटीएमआई में प्रिफर्ड ड्यू टू ईज ऑफ बोलस डोजिंग और इसके एडवर्स इफेक्ट सिमिलर टू एंटीप्लेस है. स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज एसटी एलिमेंटेड एमआई में लिमिटेड रिसोर्स सेटिंग या डीबीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, और इसके एडवर्स इफेक्ट एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, हाइपोटेंशन है, हाईएस्ट ब्लीडिंग रिस्क होता है. यूरोकाइनेस को जो है वो हम लोग कैथेटर डायरेक्ट थ्रोम्बोलिसिस में मैसिवली या डीबीटी में यूज करते हैं और इसका ब्लीडिंग या एक्सपेंसिव भी होता है और ये लेस कॉमन होता है. रेटिप्लेस जो होता है एसटी एलिमेंटेड एमआई डबल बोलस कन्वीनियंस सिमिलर ब्लीडिंग प्रोफाइल टू एंटीप्लेस. मींस जितने भी ये फाइब्रोलिटिक एजेंट्स होते हैं ये जनरली ऑब्वियसली बात है क्लॉट को डिसॉल्व करेंगे तो ब्लीडिंग को बढ़ाएंगे. तो ये एक मेजर साइड इफेक्ट है कि आप उस क्लॉट को तो डिसॉल्व करते हैं लेकिन ब्लीडिंग टेंडेंसी को ये बढ़ाते हैं. मेजर साइड इफेक्ट इसका होता है. एंड दीज आर एंटीकोगुलेंट क्लासेस का प्रेजेंट हुए क्लास दैट इज C.V.F.S, LMWH, VKA, dabigatran, rivaroxaban, apixaban एंड एंटीप्लेटलेट्स. तो ये एक तरीके से इस रूप से देना है IVSC, सबक्यूटेनियस, ओरल एंड ओरल एंड IV. ऑनसेट कितनी देर में, मॉनिटरिंग, रिवर्सल और की यूज. बात कर लेंगे यूजेस का. की यूज होता है सर्जरी में एंड ACS एंड रीनल फेल्योर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में. LMWH डेबिटा लो मॉलिक्यूलर वेट रिपेयरिंग, इट इज यूज्ड इन DVT, DTE प्रोफाइलेक्सिस. वारफेरिन जो होता है वो एक्यूट फिब्रिलेशन मैकेनिकल पॉल्स डिसऑर्डर्स और VTE में होता है. डेबिगैट्रान जो होता है AF, DVT एंड PE में. रेवरोक्साबैन जो होता है AF, VT, ACS में. एपिक्साबैन जो होता है AF, VT एंड पोस्ट ऑप में. एंड एंटीप्लेटलेट जो होता है ACS, स्ट्रोक एंड PCI में यूज होता है. मॉनिटरिंग एंड रिवर्सल ऑफ एंटीकोगुलेंट्स में APTT, INR, anti-XASA एंड थ्रोम्बिन टाइम. समझ लीजिए APTT को कहते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम. इसका टारगेट होता है 60 to 100 सेकंड एंड 1.5 to 2.5 मल्टीप्लाइड बाय कंट्रोल. C.V.F.S मॉनिटरिंग रिफ्लेक्स इंक्रीजिंग पाथवे. तो C.V.F.S की मॉनिटरिंग रिफ्लेक्स करती है इंक्रीजिंग पाथवे को. INR जो होता है वो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो फुल फॉर्म याद रखिएगा. इट टारगेट्स 2.220 to 30 AF यानी DT में. एंड वारफेरिन मॉनिटरिंग जो होता है PT डिराइव्ड रेशियो होता है. एंटी-XASA क्या है, क्रोमोजेनिक एंटी फैक्टर एसे लेवल. इट्स टारगेट इज 0.3 to 0.7 इंटरनेशनल यूनिट पर ml. ब्रैकेट में मेंशन करा है LMWH यानी मॉलिक्यूलर वेट रिपेयरिंग. एंड LMWH इन प्रेगनेंसी, ओबेसिटी एंड रीनल एंटीक इस पे यूज होगा. थ्रोम्बिन टाइम मेजर्स विद फाइब्रिनोजन that converts into fibrin conversion time prolonged by dabigatran apparent fibrinogen deficiency used to detect dabigatran presence. ठीक है. तो रिवर्सल एजेंट्स हैं प्रोटामिन सल्फेट, बाइसेटाइन. विटामिन के restores with PK independent factor synthesis. Additionate alpha recombinant acid coil and intracromosome that is called humanized antibody fragments. ये याद. Next is adverse effect and key risk. Anticoagulants carry an inherent risk of bleeding. सिंपल सी बात याद रखिएगा. एंटीकोगुलेंट्स
जब भी यूज होंगे तो ब्लीडिंग का रिस्क हमेशा रहेगा, ध्यान रखिएगा। एडिशनल क्लास स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट्स एंड ड्यूरिंग इंफेक्शन मस्ट बी केयरफुली कंसीडर्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही ध्यानपूर्वक यूज किया जाता है और इससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस तो पहले से बता के भी रखा जाता है और उससे रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो उसके लिए पहले से तैयारी भी की जाती है ताकि आप टाइम में उसको मैनेज कर सकें। तो इसमें क्या है, ब्लीडिंग इन ऑल केसेस, सब केसेस में ब्लीडिंग के चांसेस हैं। वारफेरिन स्किन नेक्रोसिस हो सकती है वारफेरिन से। गैलीगेट्रॉन से जीआई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद एचआईवी हिपाइन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। वारफेरिन से ड्रग एंड फूड इंफेक्शंस हो सकते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस, अगर लॉन्ग टर्म हिपाइन यूज करते हैं तो हड्डियां जो है वो कमजोर हो सकती है। इस तरीके के मेजर रिस्क हैं। नेक्स्ट इज क्लिनिकल इंडिकेशन एंड स्पेशल पॉपुलेशंस में एंटीकोगुलेंट सिलेक्शन बाय इंडिकेशन, एक्टिव फिब्रिलेशन, मैकेनिकल हार्ट वॉल्स, डीबीटी, पीई ट्रीटमेंट, पीटी प्रोफाइलैक्सिस, एसीएस, इस्केमिक स्ट्रोक, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एंड कैंसर एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस। किसमें कौन सा यूज होना चाहिए वो चीजें मेंशन की गई है। एक्टिव फिब्रिलेशन में आपका डीओएसी प्रेफर्ड होती है जिसमें गैलीगेट्रॉन, रिवारोक्साबैन, अपेक्साबैन। मैकेनिकल हार्ट वॉल्स अगर डिजीज है तो वारफेरिन ओनली यूज होगा। डीबीटी में डीओएसी फर्स्ट लाइन होगा। बीटी प्रोफाइलैक्सिस में एलएमडब्ल्यूएफ, इसमें भी स्पेशली एनॉक्सापैरिन यूज करेंगे। एसीएस या एसटीएमआई में हेपेरिन यूज होगा। इस्केमिक स्ट्रोक में एंटीप्लेज यूज होगा, ध्यान रखिएगा एंटीप्लेज दैट इज नॉट टीपीए। इफ विद इन 4 से 5 घंटे के अंदर यही यूज करें। फिर एस्पिरिन या टॉपिकल सेकेंड प्रिवेंशन में यूज होती है। नेक्स्ट इज दिस इज इस्केमिक स्ट्रोक में एंटीप्लेज विद इन 4.5 आवर्स एंड एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में वारफेरिन यूज होगी। और कैंसर एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस में एलएमडब्ल्यूएच प्रेफर्ड हिस्टोरिकली एंड रिवारोक्साबैन एंड ऑक्साबैन नाउ एविडेंस बेस्ड। ठीक है, स्पेशल पॉपुलेशंस में प्रेगनेंसी में एलएमडब्ल्यूएच, रीनल इंपेयरमेंट में डीओएसी, एल्डरली पेशेंट्स में हमेशा लोअर डोज डीओएसी यूज करेंगे। ओबेसिटी में फिक्स डीओएसी डोजिंग इसमें यूज करेंगे। एलएमडब्ल्यूएच ये ज्यादा जो है वो विद एंटी एक्सेमोनिटिन प्रेफर्ड इन मॉर्बिड ओबेसिटी। अवॉइड गैलीगेट्रॉन को अवॉइड करेंगे ओबेसिटी में। लीवर डिजीज में इम्पेयर्ड फैक्टर सिंथेसिस, वारफेरिन अनप्रेडिक्टेबल, डीओएसीज अवॉइड इन चाइल्ड, सी एंड यूएसडब्ल्यूएच सेफर ऑप्शंस। ज्यादातर लिवर डिजीज में एलएमडब्ल्यूएच यूज करते हैं एंड पीडियाट्रिक्स में यूएफएच एंड एलएमडब्ल्यूएच यूज होती है। एंड बीकेएस एंड द वारफेरिन फॉर क्रॉनिक एंटीकोगुलेशंस, याद रखिएगा। सो हर एक केस के हिसाब से अलग अलग जो है वो ड्रग्स यूज होती हैं और सेफ्टी नॉर्म्स को भी असेस करके ही फिर वो मेडिकेशन जो है प्रेफर किए जाते हैं। ओवरऑल समरी अगर कंक्लूजन की बात करें तो एंटीकोगुलेंट्स इस टाइम जनरली जो नाम आपको मेंशन हो रहा है C.V.F.S दैट इज कॉल्ड हेपारिन, एलएमडब्ल्यूएच, वारफेरिन, गैलीगेट्रॉन, रिवारोक्साबैन, अपेक्साबैन, इनॉक्साबैन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल एंड एल्टीप्लेज। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें जो है वो आपके एंटीकोगुलेंट्स आती हैं। एंटीकोगुलेंट्स स्पान 5 मेजर क्लासेस ईच विद डिस्टिंक्ट टारगेट एंड क्लिनिकल रोल्स। अलग अलग उसके रोल हैं और क्लिनिकल उसके रोल्स हैं और उनके टारगेट्स भी हैं। C.V.F.S और LMWH are parental, titrable and used in acute and high risk setting. Warfarin remains the only option for mechanical heart valves. याद रखिएगा, and APS है triple positive. Docs offer predictable dosing, no routine monitoring, fever interactions. Antiplatelets are preferred for arterial thrombosis, that is called ACS and PCI and ischemic stroke. Next is thrombolytic dissolved septic clots used in STMI, stroke and massive PE, and reversal agents exist for all major classes. Essential knowledge in emergencies. याद रखिएगा, ये important है। Reversal agents exist for all major classes. जितने भी आपके एंटीकोगुलेंट्स होते हैं उनके रिवर्सल ऑलरेडी मेंशन होते हैं और वो इमरजेंसीज के समय पे जरूर आपको यूज होना चाहिए, याद भी होना चाहिए और यूज भी उस हिसाब से आप करें। पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स में लीवर फंक्शंस, प्रेगनेंसी और एज का हमेशा ध्यान रखेंगे। गाइड ड्रग सिलेक्शन, जो भी ड्रग सेलेक्ट करें अकॉर्डिंग टू द केस और उसकी सीवियरिटी और कंडीशन के हिसाब से असेसमेंट करें। द राइट एंटीकोगुलेंट एट द राइट डोज फॉर द राइट पेशेंट, दैट शुड बी वेरी क्लियर कट, रिमेंबर टू ऑल ऑफ यू। द राइट एंटीकोगुलेंट, सही एंटीकोगुलेंट एट द राइट डोज, सही डोज में
पर्टिकुलर पेशेंट को क्या देना है उतना आपको जरूर पता हो। अगर ये तीनों पैरामीटर्स आप मेंटेन करके चलते हैं तो ऑब्वियसली आप पेशेंट की लाइफ सेव कर पाएंगे और बेस्ट वे में मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ये सब जो कंडीशंस होती हैं ज़्यादातर जो इमरजेंसी की कंडीशंस होती हैं या क्रिटिकल स्टेज पे होती हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी को आपको पूरा ध्यान करके चलना पड़ेगा। प्लस एक इसका मेजर जो साइड इफेक्ट है वो ब्लीडिंग का होता है। तो अगर ब्लीडिंग अगर इसको देने के बाद कहीं से भी होती है तो उसका कंटिजेंसी प्लान भी आपके पास पहले से तैयार होना चाहिए, ताकि आप पेशेंट को सेव कर सकें। ऐसा ना हो कि उसको कोई ऐसा इश्यू क्रिएट हो जिसकी ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हो जाए या कोई वाइटल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो जाए जिसकी वजह से उसकी लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट क्रिएट हो जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।